moment of inertia plays the same role. Moment of inertia plays the same role in rotational motion. In rotational motion, as is played by the mass in linear motion. Yes, today write down next very important term, radius of gyration. हाँ बेटा, मेरे को बताना, कल आपको प्रॉब्लम आई थी वाला इसमें सुर में आई थी ना, तो उसमें फिगर में, तो उसके बाद तो नहीं आई थी प्रॉब्लम बोर्ड पे? यस गुरप्रीत। नो सर। बेटा आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आपकी। आई थी प्रॉब्लम उसमें, बता दिया करो उसी टाइम बीच में ना, सर ब्लर दिख रहा है या कुछ। ओके, so now we will write down radius of gyration, radius, radius of gyration, gyration, radius of gyration, gyration. It is denoted by capital K. It is denoted by capital K. Radius of gyration is denoted by capital K. तो बेटे देखो, रेडियस ऑफ gyration जो होती है वो क्या होती है? देखो इधर, here is a body and this body is rotating about this axis. Let this axis of rotation is AB. Okay, here is the body and this body is composed of n particles. This is particle number 1 of mass m1. This is the perpendicular distance of this particle from the axis of rotation. Here is particle number 2 of mass m2. Let the perpendicular distance is what? r2. Let this is ith particle, ith particle of mass mi, and let the perpendicular of the distance is what? ri. Let here is nth particle of mass mn, and let rn is its perpendicular distance from the radius of gyration. Okay, और बेटा अगर लिसन मैंने इस बॉडी का क्या करना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस mn rn स्क्वायर. ओके, अब अगर सपोज करो 1 लाख पार्टिकल है तो मेरे को 1 लाख टर्म लिखने पड़ेगी. ओके, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है. ओके, लेट दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज दिस वन. ओके, this one, and the radius of this perpendicular distance of this point is called radius of gyration, K. The perpendicular distance of this particle is called K, and let this particle is at this point is P and this is at P, and the perpendicular distance of this point is, what is this point? This is the point where the whole mass of the body was supposed to be concentrated, and the perpendicular distance of that point is written by K, where K is called radius of gyration. Where K is called radius of gyration. Okay. Okay beta ji, so therefore write down first of all statement, radius of gyration of a body, radius of gyration of a body about a given axis, is the perpendicular distance of a point from the axis of rotation
from the axis of rotation at which whole of the mass of the body is supposed to be concentrated, and the moment of inertia would be the same as that, determined by the actual distribution of mass. ये बेटे मैं आपको ना डेरिवेशन के बाद समझाता हूँ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी द सेम एज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द masses. ओके, तो देयरफॉर बेटे नाउ इफ द बॉडी इज होमोजेनियस, अगर बॉडी होमोजेनियस होगी तो मासेस होंगे, हर एक पार्टिकल की क्या होगी? सेम होगी। इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कितना हो जाएगा? mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस mrn स्क्वायर और mnrn स्क्वायर, और बेटे नहीं mn नहीं आएगा, m ही आएगा। सो m जो है कॉमन लेके हमारे पास रह जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर। ओके ओके बेटा जी, m जो है ठीक है, m जो है कॉमन लेके। नाउ राइट हैंड साइड में बेटे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n, देन वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट m into r1 square plus r2 square plus rn square, or we will get mn into r1 square plus r2 square plus rn square divided by n. This body is composed of n particles of same mass. So this mn जो term है ना बेटा, mn, I am saying it is capital M, total mass of the body, okay, into r1 square plus r2 square plus rn square divided by n. So therefore this is equation number 1, moment of inertia. Listen, this is equation number 1. ये जो आ गया बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसका? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, जो जहां जहां पे पार्टिकल थे इनटू उनका मास इनटू उनका क्या? स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली जहां जहां पे मासेस पड़ी है। ओके, और बाय डेफिनेशन अगर मेरे को इतनी इक्वेशन नहीं लिखनी है, एन टर्म नहीं लिखनी है, तो मैंने ऑटोमेटिकली एक ऐसा पॉइंट इसके बीच में ढूंढ लिया है जहां पे इस पूरी की पूरी बॉडी का मास क्या है? कॉन्सेंट्रेट, और उसकी रेडियस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज के। सो बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आगे बेटे बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो अभी मैंने कहा, अभी मैं आपको बाद में समझाता हूँ, वहां पे लिखा हुआ है ना, radius of gyration is a point in the body where if whole mass of the body were supposed to be concentrated. Okay, अगर मैं इस पॉइंट को मानता हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन, और पूरी बॉडी का मास अगर टोटल मास m है, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? m k स्क्वायर। और अगर मैं इस पॉइंट को नहीं लेता हूँ, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट करता हूँ, तो
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है m into r1 square plus r2 square plus dash dash rm square divided by n. Comparing equation number 1 and 2. Comparing equation number 1 and 2. So we have k square is equal to r1 square plus r2 square plus rn square divided by n. ओके बेटा जी, गुरप्रीत, गुरप्रीत बेटा आवाज आ रही है? यस हाँ जी सर। जवाब दे दिया करो बेटा, साफ दिख रहा है बोर्ड? यस सर। ओके बेटा। सो देयरफॉर अब k की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? k की वैल्यू आएगी, रूट कर लो, है ना। सो आ गया दैट इज इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर 1/2, रेज टू पावर 1/2। ओके, इसको बोल देते हैं बेटे RMS वैल्यू। हाँ राइट डाउन, इसको बोल देते हैं RMS वैल्यू। राइट डाउन, नई डेफिनेशन एक और आ गई, रेडियस। देयरफॉर रेडियस ऑफ जाइरेशन, देयरफॉर रेडियस ऑफ जाइरेशन of a body about an axis of rotation of a body about an axis of rotation is defined as the root mean square, is defined as the root mean square distance of the particles from of the body from the same axis of rotation, from the same axis of rotation। अच्छा बेटा मेरे को ये बताओ, अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का फाइंड आउट करने का फायदा क्या हुआ? बोलो शाबाश। लोकेश, प्रगुण, आदित्य, जैस्मीन, बोलो बेटा। जैस्मीन, यस सर। बेटा बोलो। रेडियस का मीन पता लग। ओके, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है आपकी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, इसका फायदा पता क्या होगा? देखो ना, सिंपल सी बात है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 जो है बहुत ज्यादा लंबी इक्वेशन है, n टाइम्स, है ना। और ये जो n k वाली है सिंपल छोटी सी बन गई, ये के लेना रेडियस एक पॉइंट का, बाकी n कर लेना। ओके, और फिर भी यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है बाद में एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो अगर हम हर एक पार्टिकल का मास और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो मान लो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 20 किलोग्राम मान लो। ओके, और अगर मैं उस बॉडी का, जो बॉडी ये बॉडी है, इस बॉडी का कोई ऐसा पॉइंट था जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि छोटी बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसाइड करेंगे। और उस सेंटर ऑफ मास की अगर मैं मान लो रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड कर लूं, कितनी है? मान लो 20 सेंटीमीटर है। ओके, इसका मास m है, तो जब मैं रेडियस ऑफ जाइरेशन इसका टोटल मास इनटू k का स्क्वायर करूंगा तो वो भी 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ही आएगा ना। आप समझ गए? यस। हाँ, अब देखना बेटे, बड़े ध्यान से सुनना ना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ठीक है रेडियस ऑफ जाइरेशन का। डायग्राम हमारा आगे यही चलेगा। ओके, मैं इसलिए मैं डायग्राम को इरेज नहीं कर रहा हूं। ओके, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखना आपको। आपने फटाफट मेरे को एग्जांपल का आंसर दिया करना जो मैं पूछूंगा। ओके, कोई भी बच्चा दे देना चाहे ना, मैंने फुल स्क्रीन हुई है, मेरे को आपका नाम और चेहरा दिख रहा है बेटा। ओके, तो बार बार नहीं बुलाया करो, आप बोलो आप बोलो, ठीक है। किसको भी आता है कोई बात नहीं, आंसर गलत हो जाएगा तो क्या बात है ना। सूली पे तो लटकाऊंगा नहीं मैं आपको। चलो देखो बेटा, ये मेरे पास ना एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा। ओके, और ये यूनिफॉर्म है, मतलब जितना चौड़ा यहाँ से है, मोटा यहाँ से, उतना हर जगह से है।
और ये मैंने ना इसको हैंडल लगा दिया, एक हैंडल, मतलब ये मैंने एक बैट बना दिया। ओके, ये इसका हैंडल है। आपको समझ आ गई बात? यस सर। इसका मास m है। ओके, तो चाहे 1 किलो और 1.5 किलो, उसको छोड़ो परे। और दूसरा एक और मेरे साथ एक और कंपिटेंसी में एक और बंदा है, उसने क्या किया, उसने भी इस हैंडल को तो उतना रखा, लेकिन उसने इस लकड़ी के ना थोड़ा सा मतलब डिजाइन ऐसे किया भाई, उसने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, यहां से पतला कर दिया और यहां से मोटा कर दिया इसको। मास इसका अभी भी m ही है। और एक और है क्रिस गेल, क्रिस गेल जिसका नाम लेता हूं मैं, वो बहुत अच्छा प्लेयर है ना, दुश्मन नहीं है मेरा। क्रिस गेल जो है, ठीक है, उसका भी हैंडल सेम ही है, ठीक है, लेकिन उसका जो बैट है ना, उसका बैट का जो मास है वो m ही है, लेकिन उसने उसकी लंबाई बढ़ा दी, यहां से उसकी थिकनेस कम कर दी और यहाँ पे थिकनेस ज्यादा कर दी। ओके, तो देखो ये जो ए वाला फर्स्ट केस है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सेकंड का देखो, ज्यादा लकड़ी तो चल गई तो ज्यादा मास की जरूरत होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ जैसे आ गया। और जो क्रिस गेल का बैट है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। अब जब बैट घूमेगा तो सारे के सारे बैट जो इस एक्सिस के अबाउट घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? यस स्टूडेंट्स, वो जब बैट को घुमाते हैं, घुमाते नहीं है। यस सर। हाँ, तो मेरे सर को पहले आपकी आवाज कट गई थी। जी, सर यस सर, कनेक्शन प्रॉब्लम है। सर पहले आपकी आवाज कट गई थी, अच्छा आवाज तो आ नहीं रही थी पहले सर। ओके, तो बेटा मेरे को सुन लो, ये मैं कह रहा हूँ, एक बैट है ना, लकड़ी का टुकड़ा है, सिंपल लकड़ी का टुकड़ा। मैं जो हूँ, मैं अपने आप को बड़ा मानता था ना कारपेंटर, मैं बहुत बढ़िया बैट बनाता हूँ। मैंने यूनिफॉर्म मोटाई का एक बैट बना दिया, और जब ये बैट घूमेगा ऐसे ना, तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कितनी है, k1। दूसरा जो कारपेंटर मेरे मुकाबले का है, ठीक है, उसने क्या किया, उस बैट को थोड़ा ऐसे कर दिया, मास तीनों बैट का सेम ही है, लेकिन दूसरे कारपेंटर ने इसका जो यहाँ पे मास था वो कम कर दिया, आगे जाके इसका मास बढ़ा दिया, तो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ी कोई होगी k2। और ये क्रिस गेल है, ये बहुत चालाक है, इसको फिजिक्स पूरी आती है। इसने मास उतनी रखी, लेकिन इसको यहाँ से बिल्कुल ठीक किया और आगे जाके ठीक करके, जाहिर है जितना मास जित होगा सेंटर ऑफ मास उसको शिफ्ट कर जाएगा ना। यस सर। तो बेटा इसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या है, k3 है। अब बताओ मेरे को, मास सभी बैट का सेम है, लेकिन इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम है। इसका मान लो कितना है, इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका कितना हो गया 20, मान लो 15 सेंटीमीटर, और क्रिस गेल भाई साहब ने कर लिया 30 सेंटीमीटर। तो बताओ मेरे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? थर्ड का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, इसका होना ज्यादा, ये स्टूडेंट्स इसका होगा ना ज्यादा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो चलो चलो, आपको सुनाई दे रहा, समझा रहा, अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी ना, आवाज कट जाएगी, तो मेरे को दोबारा पूछना। तो बेटे देखो, इसलिए, और मैं कह रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो जब घूमेगा बैट, तो वो वही काम करता है जो क्या करता है, मास करता है लीनियर मोशन में ना। अब नंबर 1 देखो, तेंदुलकर का जो हैंड है वो कितना है, 1.5 फुट लंबा है। तो जब तेंदुलकर इसको पकड़ेगा तो 1.5 फुट और दूर चला जाएगा बैट, है ना। और क्रिस गेल का हैंड जो 2.5 फुट है, वो क्रिस गेल का हैंड बैट जो यहाँ चला जाएगा। तो बताओ ज्यादा मार कौन सा क्रिकेटर बैट करेगा? क्रिस गेल। जो जितना जिसका लंबा हैंड होगा उसका जो देखो बैट भी उतने आगे चला जाएगा ना। तो यहाँ पे जो बंदा है तब यस सर। लगाएगा 6, तो बंदा घूमता है ना। तो बंदे की जो क्या है, स्पाइन है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जितना इसका सेंटर ऑफ मास दूर जाएगा, उसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन बढ़ जाएगा। मास तो कांस्टेंट ही है, उसको मैं चलाऊं आप चलाओ जो मर्जी, लेकिन रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो है, जितना दूर जाएगा, इसका जो इफेक्ट होगा बॉल के ऊपर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके ओके बेटा जी। यस सर। हाँ, नाउ राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन।
बेटा वही डायग्राम बनेगा, वो आगे 1-2 आर्टिकल के लिए, 3 आर्टिकल के लिए। ओके, दिस इज बॉडी ऑफ masses m1 m2, okay, and this is like mi, and radius of gyration is ri mn, okay, and this body is revolving about axis ab, ये जो ab axis x y z बनाने की जरूरत नहीं। ओके, we know v is equal to r omega, we know v is equal to r omega। अब बेटा देखो, हम जब जिस दिन हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था उस दिन मैंने बताया था हर एक बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, देखो ये बॉडी यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो जाहिर है इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी है ना, बिकॉज लीनियर वेलोसिटी दैट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटे, वो सारे के सारे पार्टिकल सेम एंगल कवर करेंगे एट ए टाइम। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो देयरफॉर v1 is equal to what? v1 is equal to r1 omega, similarly v2 is equal to r2 omega, similarly dash dash r and vn is equal to rn omega। Therefore kinetic energy of body number 1 is equal to 1 by 2 m v1 square, और it is equal to 1 by 2 m v1 की जगह आ जाएगा बेटा क्या, r1 ओमेगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली बॉडी नंबर 2 की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा जी? यस, बॉडी नंबर 2 की काइनेटिक एनर्जी 1 by 2 m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 m into r2 square omega square। Okay, Yes, sir. m1 m2 है ना। सिमिलरली बेटा n बॉडी की कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू mn vn स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब ओमेगा स्क्वायर बड़े सब में। ओके, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 प्लस डैश डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ n। सो देयरफॉर ओमेगा बेटे इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो वो आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, और 1 by 2 भी कॉमन आ जाएगा, 1 by 2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आके हमारे पास बच गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस mn rn स्क्वायर। और बेटे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। Yes, sir. So therefore Yes. kinetic energy is equal to what? It is equal to 1 by 2 capital I omega square, capital I omega square। ये तो बेटा रोटेशनल मोशन की आ गई। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, लीनियर मोशन से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, 1 by 2 mv स्क्वायर। तो देखो m की जगह I आ गया ना, और Yes, v sir. की जगह ओमेगा। So therefore moment of inertia plays the same role in rotational motion as is played by the mass in linear motion। Okay, Yes, sir. हाँ जी बेटा, लिख लिया, मैं चलूं आगे। हाँ जी सर। राइट डाउन बेटे। नेक्स्ट, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायग्राम यही रहेगा बेटा, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायग्राम सेम। We know
we know linear acceleration is equal to a is equal to r alpha. ओके अब बेटे ये जो बॉडी है इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन m1 भी कांस्टेंट नहीं है, सॉरी मासेस ऑफ हर एक पार्टिकल की कांस्टेंट नहीं है, और रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी कांस्टेंट नहीं है। ओके सो देयरफॉर a1 is equal to r1 alpha, similarly a2 is equal to r2 alpha, similarly dash dash an is equal to rn alpha, rn alpha. So therefore we know F1 according to second law of motion, force on particle number 1 is equal to m1 a1 is equal to what? m1 r1 alpha. Similarly F2 is equal to m2 a2 is equal to m2 r2 alpha dash dash. Similarly force on nth particle is equal to mn an is equal to mn rn alpha. Okay okay बेटा जी, Yes, sir. we know Yes, sir. torque is equal to perpendicular distance into force. Therefore torque 1 tau1 is equal to perpendicular distance कितना आ गया इसका r1 और force कितनी आ गई इसके ऊपर m1 r1 alpha. Similarly tau2 is equal to what? r2 m2 r1 alpha. Similarly dash dash tau n is equal to rn mn rn alpha. अब बेटे r वाली टर्म डबल है बेटे, Yes, sir. बेटा गर्मी बहुत है, आवाज कर रहा यस है। सर बहुत है। नहीं वो लाइट तो है ना, देखो आपको मेरे पर शायद दिख रही है, लेकिन इन्वर्टर पे है, इन्वर्टर से फैन बहुत आवाज करता है ना। चलो तो देखो बेटा इसको टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, देखो चलो इसको सॉल्व कर लो पहले। सो देयरफॉर हमारे पास आएगा टोटल टॉर्क इज सॉरी इज इक्वल टू tau1 प्लस tau2 प्लस डैश डैश प्लस tau n। अब बेटे देखो हर एक टर्म में जिसमें r1 है उसमें दो बार r2 दो टाइम्स आया। ओके सो मेरे पास आ जाएगा कितना बोलो शाबाश, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश डैश प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। अब अल्फा कॉमन ले लो बेटा, तो मेरे पास बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा कॉमन। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म आई इसको क्या बोल देंगे हम, ये बच गया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और अगर मैं फोर्स को देखूं तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे एंगुलर फोर्स है टॉर्क और एफ क्या लीनियर फोर्स। मास जो क्या है लीनियर मास, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट प्लेज द सेम रोल है ना, ए लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा एंगुलर। So therefore ये जो inertia moment of inertia that is the analog of mass, that is the analog of mass।